بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں بہنوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہم کو کیا کیا دیتا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں نماز کی فضیلت اور فائدے ہم جاننے والے ہیں۔ بھائیوں، آپ ہمارے چینل 786 SG کے ورڈ پر نئے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ بھائیوں، آج کے ویڈیو میں 5 وقت کی نماز کی فضیلت ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے بھی نفل نماز ہوتے ہیں جو فجر اور عشاء کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان سبھی کا فضیلت اور فائدے یہاں پر ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فجر کی نماز کی فضیلت۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالی کس کس برکت فضیلت سے نوازتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھنا بہت سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صبح میں پڑھا جاتا ہے اور لوگوں سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا، لیکن ہم لوگوں کو اپنے جیون میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے جس سے صبح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پہلے سونا ہوگا تبھی صبح اٹھ پائیں گے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آ گیا اور اس کے دن بھر کے کاموں میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیا تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر نماز کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کے گھر میں برکت اور ہر بیماری اور ہر پریشانی اور رزق کی تنگی سے دور کر دیں گے اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ ظہر کی نماز کی فضیلت۔ روزانہ نماز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے قیامت کے دن
जहन्नुम की आग को हराम कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जोहर से पहले 4 रकात और जोहर के बाद 4 रकात हमेशा नमाज पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। जो आदमी नमाज जोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ता है तो उसकी फजीलत तहज्जुद नमाज के फजीलत के बराबर है। जोहर नमाज की पाबंदी करने वाला बहुत सुकून महसूस करता है और रोज दिन भर के काम में ध्यान लगता है। इसलिए जिसे जोहर की नमाज नहीं पढ़ने आता है तो जोहर की नमाज का तरीका सीखना चाहिए। असर की नमाज की फजीलत। बहुत सारी हदीसों में असर और फजर की फजीलत सबसे ज़्यादा आया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि असर नमाज कायम करें और उनके फजीलत जानें। जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे उसका नुकसान ऐसा होगा या उसको सदमा या अफसोस ऐसा होगा जैसे कि सारे रिश्तेदार मर गए और पूरा माल और दौलत लुट गया। जो आदमी असर अदा करता है उसको अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाते हैं और जिसने असर नमाज छोड़ दी उसका सब कुछ लुट गया और बर्बाद हो गया। एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी यानी फजर और असर की नमाज तो फरमाया कि वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, यह नमाज तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फर्ज की गई थी मगर उन्होंने इसको ज़ाय कर दिया। लिहाजा सुनो, जो इसकी पाबंदी से पढ़ता है उसको दोहरा सवाब मिलेगा। एक रिवायत में है कि असर की नमाज के वक्त फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है। दिन के फरिश्ते आसमान के तरफ जाते हैं और रात के फरिश्ते वापस आते हैं। जब दिन के फरिश्ते वापस आसमान के तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद फरिश्तों से मालूम करते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। तब फरिश्ते तारीफ करते हैं कि अल्लाह, आपका बंदा नमाज में मशगूल था। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वक्त पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में आप इस वक्त नमाज पढ़कर मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हदीस शरीफ में आया है कि जुमे के दिन असर से मगरिब के बीच में मांगी गई दुआ कबूल होती है। तो इस लिहाज से आप असर से मगरिब के दरमियान तिलावत किया करें और उसके बाद दुआएं मांगा करें। आपकी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होगी। मगरिब की नमाज की फजीलत।
मगरिब नमाज भी बहुत फजीलत वाली नमाज है, जिसका कुछ फजीलत नीचे बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझें। गंदे जिन्नात, हवाई अशरात और शैतानों से हिफाजत। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिसमें आका का फरमान है, लोगों, जब सूरज गुरूब होता है, डूबता है, तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अगर तुम लोग उनसे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के ज़रिए तमाम सरकश, शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देंगे। अगर कोई शख्स मगरिब की नमाज पढ़कर सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी, और अगर आपकी कोई हाजत है तो वह भी अल्लाह सुब्हान ताला कबूल फरमाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ने से आपकी असर से मगरिब के दरमियान किए गए गुनाह माफ हो जाएंगे। जो शख्स मगरिब की नमाज पढ़ेगा तो वह अपनी औलाद से नफ़ा हासिल करने वाला होगा और उसके औलाद से उसको नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी मगरिब की नमाज अदा करेगा तो उसको नेक औलाद मिलेगा। इशा की नमाज की फजीलत। जिस आदमी ने इशा की नमाज की जमात के साथ पढ़ ली और जिसने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ ली हो, वो बंदा ऐसे है कि जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। इशा की नमाज लंबी होती है, जिससे इसको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत है, क्योंकि अल्लाह को लंबी रकातें पसंद हैं। दोज़ख की आग से छुटकारा। दोस्तों, इशा की नमाज की फजीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद में जमात के साथ 40 रातों तक इशा की नमाज पढ़ ले और उसकी पहली रकात भी न छूटने पाए, तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए दोज़ख की आग से आज़ादी लिख देता है। भाइयों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।